from school buses to local trains, from getting full marks in the exams, from getting just passing marks, from attending full lectures to bunking lectures. A responsible childhood died and a carefree adulthood arrived. So, here I welcome our alumni in another episode of most awaited show, Alumni Chapters Meet. जिंदगी की कहानी युवाओं की जुबानी. So without wasting more time, we'll start our nostalgic ride with our alumni, and I would like to brief them about the today's total program. So, but not in an ordinary way. I will start in the way of a format of a MSc paper. आप सबने MSc तो दिया ही होगा. 3 सेक्शन है. All questions are compulsory. पहला सेक्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा फॉर्मल क्वेश्चंस. सेकंड सेक्शन जो रहेगा आपका इनफॉर्मल क्वेश्चंस और थर्ड रहेगा थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए हमने गेम रखा है आपके लिए. सो हमारे ऑडियंस जिन्हें लग रहा है कि आप सीधा अच्छे पार्ट पे स्किप करना चाहते हो वो मत करना क्योंकि ये काम की चीज है, उसको भी पूरा देखना. सो अब बिगिन करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन सेक्शन के साथ. सो वी स्टार्ट विद यू वासु. So my name is Vasu Dikshit and I have completed my bachelor's in engineering, mechanical engineering in 2013-2017 batch. Post that I was placed in Gujarat Guardian Limited. Working there for 5 years, I have now thought to start my own business. So I've joined my family business here itself in Ankleshwar. So yeah, that's my basic intro. That's amazing, and we can even start our own business inspiring from you. So can I know about you, Jason? So yes, I am Jaisal Patel. I have done environmental science and technology here, and I was admitted in 2014 batch, passed out in 2018. After bachelor's, I did masters in US in environmental engineering. I was there for like 3 years. I came back just like May, and since last couple months, I started working in Siddhi Green Consultancy. So yeah, that's it. Seems you are too much interested in studying further too. Yes. So let's begin with our first section. All questions are compulsory, as I mentioned about, and please enter your seat number on the question paper. So the first question comes here for you. As you both have been working with the industries from few years and few months. So firstly, I would like to know that how was the transition phase? Because when we are in the college, we are like more of informal. We are like more of not just casual behavior. So how we have to change ourselves, and how was your experience in that? You start. I don't have that much of experience. So basically, transition is good. Actually, I would say the tagline is जितनी मजे करने हैं कॉलेज में कर लो, उसके बाद तो नहीं कर पाओगे. But then being in such a college, that transition was smooth, I would say. Because there are a lot of things which are taught in this particular college which are meant to be learned in your professional life. So yeah, that helped me a lot in my professional life, whether it is discipline, whether it is maintaining the deadlines and all for the assignment. So yeah, so transition was smooth. I don't think there was any issue. Okay, so You didn't find it much difficult about it. I think it was smooth, go with the flow kind of thing. So yeah, it was smooth for me. And what about you, Jason? Same goes with me, as he said, because we have a lot of activities going on in our college. They give us a lot of exposure, like speaking with like people and everything. Yeah. So we get a lot of vocal experience also. So that isn't problem. And also we've been to like industries a lot, so we know how the atmosphere there is. So it becomes easier for us to get into that field. So it is overall a good experience. So basically, college programs like IB, Yeah, in the very transition helpful. phase, They're very correct, helpful. correct. Yes. it's amazing to know because we thought IBs are like a picnic. We are going there and just coming We back. used to do that, but then we realize it right now. Yeah, that so it now helps. we realize that the most important thing out of the curriculum was industrial visit. Yes. You get to know practically what you are going to do after 4 years. So yeah, that is important, I guess. I think I got another point to attend IB because it was first motive was that I am able to not attend the lectures and it was a plus point for me. Okay, I'll remember this point. So, a second question I would like to ask you both that whenever we think about our job, like we are in the final year right now, and when you were there in your final year, you might have some perception about your first job. And how was your first job, and did they meet your expectations? Because
Normally in the last year we are just thinking about when I'll get placed I'll do this that. So how was your first job role and did it match your expectations? So for me, it was like whenever I was doing my bachelor's, I had decided that I want to do masters like abroad. So basically, when I went there, I wanted to work over there, but I didn't want to shift to other state or something. So over there, working experience is pretty much different than here. अच्छा. So I'd imagined that I want to work like over there, having all the office and everything, but I had to come back. But here also, it's like I'm an office job basically, like the 9 to 5 this thing. So it's nice also over here, like a good working atmosphere everywhere, like all the colleagues and everything. It's pretty much good, like not a problem like that. ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि आपने सोचा कि मैं जाके डेस्क पे बैठूंगी डेस्क पे सारा काम होगा और आपको भेज दिया फील्ड में जाओ ये देख के आओगे? एक्चुअली ऐसा होता है, यहाँ पे है ऐसा पर करना था ऐसा, बिकॉज लाइक पूरे टाइम बैठे रहोगे तो लाइक ऐसे बोर हो जाओगे, तो थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है कि ऐसे इंडस्ट्रियल कहीं पे गए और एक्चुअल में देखने को मिला कि ऐसे होता है और काम ऐसे होता है. एक्चुअली मैंने अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो आई एम गेटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स वेरी नाइस. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपोजर राइट नाउ व्हाट आई एम हैविंग, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. Vasu, what do you So for me actually देखो सोचा तो हमने बहुत कुछ था है ना कि ऐसा जॉब होगा, इतना पैकेज होगा और पहले ही महीने में गाड़ी खरीद लेंगे और घूमेंगे फिरेंगे. बट या द हार्ड फैक्ट इज दैट यू नो देयर इज अ रेस व्हिच इज गोइंग outside of this college. So you know when you go into that race you realize कि जहाँ जगह मिल रही है ना वहाँ उस जगह पे भागने लग जाओ, फिर वो अपने आप फ्लो में आ जाओगे, अपने आप स्पीड पकड़ लोगे, लेकिन जहाँ जगह मिल रही है वहाँ भागने लग जाओ. दैट वाज द सेम थिंग व्हिच आई डिड. सो आई गॉट प्लेस्ड एंड ठीक है, मतलब देयर इज अगेन होल लॉट स्टोरी बिहाइंड दैट. बट या जब प्लेसमेंट हुआ आई थॉट कि ठीक है, जितना भी पैकेज दे रहे हैं, जो भी रोल दे रहे हैं, भागते हैं. एंड नो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 2-2.5 साल के बाद, आई थिंक not only me but all the you know colleague the co-students and the seniors जिनके साथ मेरी बात होती है, so सबका ऐसा ही था कि पहले 2-2.5 साल तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है आपके साथ, पर 2-2.5 साल बाद आपको समझ में आने लगता है कि कैसे करना है, क्या करना है, and then you really start growing up. yeah. यानी ज़्यादा ऐसा है कि अभी जो हम लोग हैं वो कुएं के मेंढक है, बाहर निकलो दुनिया देखो, हाँ, जहाँ जगह मिले बस जाके सीखना शुरू करो. हम लोग को बहुत काम है, हम लोग भी एक्सपेक्टेशंस बहुत बिल्ड हो चुके हैं कि हम जॉब में जाएंगे, ये करेंगे, गाड़ी मूवीज खरीदनी उसमें है. देखा है ना हाँ, कैसे वो महंगी गाड़ी में जाते हैं, ऑफिस में काम वो होगा, ऐसे अलग ही एक अपना पूरा घर लेके रह डाउनटाउन रहे में होगा ऐसे हैं. ऑफिस वगैरह सब. वो कोट पैंट पहन के, कोट पैंट तो आज तक पहनना ही नहीं पड़ा मुझे, मैं बता रहा हूँ, वो सब मिथ है. हाँ. तो इतना फैंसी लाइफ नहीं होता जॉब में जितना लगता है. इसका हम लोग को थोड़ा सा अंदाजा हम लोग की समर इंटर्नशिप के टाइम पे आया. हमको लगा इंटर्नशिप बहुत ही फ्लेक्सिबल है, काफी अच्छा है, जाओ बैठो काम करो आ जाओ करके. वहाँ जाके पता चला काम करने में ये करना है वो करना है, सारे सेमेस्टर का एक साथ पूछ रहे करना है काम करना है. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जैसे अभी आप दोनों इस कॉलेज से पास आउट हो और काफी स्टार्टिंग में आप निकल चुके हो. आप जब निकल गए उसके कुछ सालों बाद तो हम लोगों ने एडमिशन लिया, तो आपने कॉलेज के अभी के एनवायरनमेंट में चेंजेस देखा है, आपके टाइम में चेंजेस होगा, तो आपके हिसाब से मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी कॉलेज की जो आपको अभी भी बहुत काम आती है एज ए प्रोफेशनल एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन? तो आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरे को बाकी का ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ मैकेनिकल में देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट थिंग कि सबमिशन टाइम पे होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर. मतलब अगर नहीं होता तो वो रेपरकशंस होते हैं उसके. सो वो डेडलाइन मेंटेन करना इज समथिंग विच इज़ हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल लाइफ अ लॉट. तो जब भी कोई रिपोर्ट सबमिट करनी होती है या कुछ भी करना होता है तो या दैट हैज़ हेल्प. वो डेडलाइन मेंटेन करना, और भले ही रात को कितना भी बज रहा हो वो ख़त्म ही करके, हाँ, तो वो दैट हैज़ रियली हेल्प. एंड द डिसिप्लिन पार्ट, यू नो, अभी देयर आर लॉट ऑफ एथिक्स विच आर टॉट टू अस इन दिस कॉलेज. ऐसे मतलब बैक ऑफ द माइंड में वो चलते रहते हैं. मतलब अभी यहाँ पे देयर आर इंडस्ट्रियल विजिट्स, देयर आर इंडस्ट्रियल पीपल कमिंग ओवर इन द कॉलेज. तो वो एक रहता है कि हाँ आपको इंडस्ट्री के लोगों से इस तरह बात करनी है, इस तरह रहना है. वी सी पीपल हियर
हमारे प्रोफेसर्स हैं या जो कोई आ रहा है उनसे किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक इंटरेक्शन का मोड पता चल जाता है कैसे करना है। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं जो जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया। काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह होते ही है अपनी कॉलेज में, जिसकी वजह से हम लोग प्रोफेशनल उस फील्ड के प्रोफेशनल से कैसे इंटरेक्ट करना है उसके बारे में नॉलेज आता है। और आप जैसे बोल रहे हो डेडलाइंस आपको मैकेनिकल में बोली, अच्छा अब मुझे लग रहा है कि मैंने मैकेनिकल नहीं की बिकॉज आई एम वेरी बैड एट हैंडलिंग में अपनी कॉलेज में वो हर जगह। आई थिंक शायद उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉलेज चलती भी नहीं, मतलब वो डेडलाइंस आर कंपलसरी हुई है। डेडलाइन क्या था पहले से आपको कॉलेज लाइफ से होगी। what like even that goes, ये बात करें तब मेरे को याद है इवन लाइक प्रोफेशनलिज्म हमारे यहाँ पे क्या होता है, लाइक इंटरनल वाइवा होता है उसमें भी फॉर्मल्स पहना होता है। मेरे को अभी याद है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का वाइवा था केमिस्ट्री का समथिंग, बॉयज लोग फॉर्मल में आए नहीं, सिर्फ 2 लड़के आए थे। वो 2 पैर में पूरी क्लास ने चेंज कर करके वाइवा दी। मैम ने बोला मैं एंटर नहीं होने दूंगी फॉर्मल्स के बिना। तो उस तरह से मतलब सीखते हैं हम लोग कि कैसे प्रोफेशनलिज्म और सब मतलब ऐसे आगे होगा, सीखेंगे। अदर देन दैट यहाँ पे वी हैव लाइक पीयर लर्निंग, PLI का दैट इज अ वेरी गुड एक्सपोजर कि लाइक सीनियर्स जूनियर्स की क्लास में जाके सिखाएंगे कि लाइक टॉपिक। हाँ, तो दैट इज अ वेरी गुड एक्सपोजर। लाइक अपना बोलने का भी अच्छा होता है, अपना भी टॉपिक क्लियर होगा, एंड वो स्टेज फियर काइंड ऑफ जो होता है ना दैट गोज ऑफ व्हेन यू लाइक ट्राई एंड लाइक टीच समथिंग। So that is also a very good point, and the others you've already like covered. So yeah. As you said about the formals कि सिर्फ 2 लोग पहन के आए जिसको पूरे क्लास में रोटेट हुआ, ऐसा सेम सीन हमारे साथ हुआ था। आपका सब्जेक्ट होगा ना CPDP करके, हाँ, उसमें एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग को प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। उसमें गुड बॉय बन के जाते हैं, सारे अच्छे अच्छे काम रहते हैं। हाँ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूटर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें क्या हुआ ना कि उसका वाइवा ना हमको पता ही नहीं था, तो हम लोग चले गए टी-शर्ट और जीन्स पहन के। मैम ने बोला भागो करके सबके सब यहाँ से। तो जितने भी लड़के थे जो कॉलेज अंकलेश्वर से आए थे सब आए हॉस्टल में, नीचे वॉचमैन ने अलग रोक दिया उनको, सब वहाँ से खिड़की से मांग रहे फॉर्मल लाओ फॉर्मल लाओ। तब जाके फिर हमारा वाइवा 2 घंटे ढीले होने के बाद वाइवा हुआ हमारा। तुम्हारा तो हॉस्टल था, हमारा तो हॉस्टल भी नहीं था ना, तो ऑप्शन ही नहीं था। एक ही साइज में पूरे क्लास ने काम चलाया है। उसमें मेरे जैसा अगर होता है इनकी क्लास में सबने किया, एडजस्ट किया सबने। कुछ लोग ऐसे थे मतलब सांस रोक के वाइवा देते कि बस जैसे अंदर जाके आया नहीं आया वो अलग बात है, वो अलग एटलीस्ट है फॉर्मल पहन लिया। और सब लोग वाइवा के लिए तैयारी भी ये कर रहे हैं कि कोर्स देख ले क्या है, वो सब छोड़ दे मतलब फॉर्मल की तैयारी कर रहे हैं। और फॉर्मल की तैयारी करेंगे तो पूरी रात चलेगी। और उसके बाद एक पेन भी होना चाहिए यहाँ पे फॉर्मल। वो तो एक ही पेन नहीं चलता, एक पेन चलता है पूरे क्लास में। हाँ, पर यहाँ पे लगाया वो होना चाहिए, वो हाथ में नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी हम ढूंढे, लेकिन गोल्डन कलर की कहीं पेन मिल जाए तो कहीं लास्ट में हम एडमिन से ले गए। हम बहुत चलता हम तो कोई 1 2 रुपए वाली से चला लेते थे, पर यहाँ लगा के रखनी पड़ती थी। हम लोग ऐसा होता था ना करके कि इतना तैयारी की है पढ़ाई में नहीं, फॉर्मल्स में करके, तो लास्ट में पेन भी अच्छे लेके जाते हैं। तैयारी के लिए फर्स्ट बैच की राह देखते हो, बाहर सब ऐसे देख रहे क्या पूछा करके। सबसे मजा आता था हम लोग का एनरोलमेंट नंबर 1 में। जैसे वो आया ना, हम लोग वो आके अपने आप को इतना सुपीरियर फील करा, ये मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ। हाँ, भाव खाते हम लोग लिटरली पैर हाथ जोड़े थे, भाई बता देगा कि क्या है करके, कुछ नहीं पता यहाँ पे। अरे कुछ नहीं पूछा, सब चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ चिल नहीं होता, अंदर गए तो उसका उल्टा ही बैठा हुआ है। 4 साल हमने एनरोलमेंट 1 से अच्छी दोस्ती बना के रखी, क्योंकि काम वाइवा में आएगा फिर। पर मेरा क्योंकि एनरोलमेंट नंबर लास्ट में आता था ना, लास्ट में आता है तो सब पक जाते हैं, टीचर्स भी थक जा रहे हैं, बोल जो आता है वो बोल के चले जाओ करके। इस मामले में मेरी थोड़ी किस्मत खराब थी, स्टार्टिंग में आ जाता, बीच में आ जाता। मेरा थर्ड बैच में आ जाता था, 13 मैं तो आखिरी वाले बैच में होता था। फर्स्ट बैच उसमें भी ऊपर से टॉप 10 में आ जाते। हाँ, मेरा 13 था, तो पहले मतलब ऐसा फ्रेश मूड में वो आके बताया कि ये पूछा, उतने में तो नंबर आ जाए, तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता बीच में। तो अब लोग सब लोग सोचते हैं कि पहले सैलरी आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे आपने बोला कि आप पहले 1 महीने में गाड़ी लेने वाले थे करके, तो जब आपकी पहली सैलरी आई तो आप दोनों ने कैसे किया था? मतलब आपसे चालू करते हैं। वो पता चल गया होगा ना, फर्स्ट कार नहीं आएगी। तो पहली सैलरी तो बेसिकली ऐसे मानते हैं ना कि ऐसे भगवान के लिए, तो और नवरात्रि था मेरा, लाइक शुरू हुआ तब, तो मैंने लाइक मंदिर में दिया था। और देयर इज दिस एक गौशाला जैसा है भरूच में, वहाँ पे दिया था। तो स्पेंड नहीं किया बेसिकली मैंने अपने लिए, सारा दान करके पहले पुण्य कमाया। पहले पुण्य कमाया था, पैसे तो बाद में कमाया। ऑलरेडी कर्म थोड़े किए हुए हो गए, तो पहले धोने पड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा। तो हाँ,
आपने क्या किया था वासु भाई? जब पहली सैलरी आई तो पता चला गाड़ी का डाउन पेमेंट की EMI भी नहीं निकल पाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब घर पे वही है सेम चीज़ कि वो भगवान के सामने रख देते हैं, तो वही किया था। मतलब मंदिर में दान किया था और वो सब किया था। पहली क्या दूसरी क्या, पहली 3-4 सैलरी ऐसी चली जाती हैं, कभी अच्छा। बहन को कुछ दिला दिया वो सब, तो उसमें सब दान निकल पुण्य कर्म में चले गई। हाँ, मतलब वो मिलता ही क्या है, चना मूंगफली उसमें मतलब ऐसा होता है कि इसका मैं ही क्या ही कर लूंगा। सोचा समुंदर था, आया तालाब। तालाब भी नहीं मिलता ना दोस्त, बकेट। एक गिलास पानी मिला था बीच में। बस। तो मुझे अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो मैंने प्लान्स बनाए हैं, गाड़ी, बंगला, घर, मैं बोला 2-2.5 साल बाद plan 2-2.5 साल बाद। शुरू होगा उसके तो बाद। शुरू उसके बाद उसके बाद शुरू होगा। एकम्प्लिश होने में तो अभी थोड़ा तो बुड्ढे हो जाओ। हाँ मतलब पंचवर्षीय योजना है पूरी। पंच नहीं है वो, लंबा है, 2 सरकार आके चली जाएंगी। एक्चुअली ये सेम केस मेरे साथ हुआ था, मतलब तो छोटे लेवल पे हुआ था। जैसे अपने यूनिवर्सिटी में फेलिसिटेशन होता है, कैश प्राइज वगैरह दिया जाता है अच्छे SPA आने पे। तो मैं सोचा, मुझे पता नहीं था ये चीज़ है। मैं पहले सेमेस्टर में आया, देखा ये लोग पैसे ले रहे हैं, किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। मुझे मोटिवेशन है अगले सेमेस्टर से मैं 10 ले आऊँगा और 10,000 ले जाऊँगा। तो 10,000 का प्लान तैयार था, गोवा ट्रिप तैयारी थी वहाँ पे अपनी। पर अब देखो जैसे ही एग्जाम आई, मैं 10 SPI छोड़ो, पहले 7 ले आता हूँ। ग्रीन पट्टी दिखनी चाहिए नीचे, बस, तो मैं ग्रीन पट्टी पे आ गया। और तब से फिर मैं अभी तक सोच ही रहा हूँ करके फेलिसिटेशन के इतने पैसे आएंगे, उसका ये करूँगा ये करूँगा करूँगा। हमारे टाइम में ज्यादा आते थे। मेरे को सर हमेशा हंसते हैं, तू आधी सैलरी तो तू जो फीस भर रही है आधी तो खुद लेके जा रही है। मैं बोला हाँ, वो थोड़ा तो ऐसे चाहिए रिटर्न बैक। मैं क्या पहले से दान में विश्वास रखता था, तो मैंने वापस मैंने लिए मांगे नहीं। नहीं थे, दिए थे यार उन्होंने। तो आपको फेलिसिटेशन में कितने बार जाने का मौका मिला? एवरी सेमेस्टर। मतलब कौन फिक्स ही था, जाना ही है आपके, मतलब वो एकेडमिक कैलेंडर में ही होगा ना ये तो, एग्जाम के बाद फेलिसिटेशन। पहली बार पता नहीं था, एक्चुअली शॉकिंगली आ गए थे इतने। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना आए। अब वो सब ऐसे नहीं है, सब सीरियसली यही बोलते हैं। इतना बड़ा भी नहीं था जितना आए है, पर आ गए। हाँ, ये मतलब बेसिक डिफरेंस दिख रहा है ना। आप कितने बार गए थे फेलिसिटेशन में? जिस दिन फेलिसिटेशन आता था मैं कॉलेज ही नहीं आता था। अच्छा, दुख मतलब दर्द बेसिक पीड़ा। डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, दुख दर्द नहीं, जब आज अपना कोई काम नहीं तो अपने जाके करेंगे। ताली बजाने के लिए थोड़े आएंगे इतने आज दिन अपने आराम हमारी करेंगे। क्लास में ना, तो मेरा चेक और सर्टिफिकेट लेके सब फोटो भी खिंचवाते इंडिविजुअल, जो हमको मिला है, नाम थोड़ी पड़ा गया। और फिर जिस दिन फेलिसिटेशन होता था ना, उसके अगले 1 हफ्ते तक सब की फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी और पोस्ट होते थे। मैंने आज तक नहीं किया पोस्ट। वो तो वो बोलते थे पता है हाँ, कि लाइक करो ये लोग थोड़ा तो- ऐसे हाँ। प्रमोट हो। काम करो, बस सबको बताओ मत करके। तो आगे एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और प्रोबेबली ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था सारे क्वेश्चंस कंपलसरी वाला, उसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अभी जैसे आप लोग हो, आपने कॉलेज लाइफ खत्म कर लिया, आपने थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ भी देख ली करके। प्रोफेशनल लाइफ में आप अलग अलग लोगों से मिले, कॉलेज लाइफ में अलग अलग लोगों से मिले, तो आपको मतलब कभी ऐसी खुशी तो होती होगी ना कि कोई सेम कॉलेज का मिल गया, तो हाँ भाई तू तो मेरी कॉलेज का है करके। तो कब ऐसा कोई प्राउड मोमेंट या कोई प्राउड चीज़ आप बहुत प्राउड फील करते हो कि हाँ यार ये मेरी कॉलेज से है, अपनापन महसूस होता है उससे मिलकर? तो मैं तो जिस कंपनी में गया था, ऑलरेडी 2 सीनियर उस कंपनी में थे, अच्छा, और मेरे साथ एक और मेरा बैचमेट उसी कंपनी में था। तो वो एक पता है अननोन लोगों के बीच में एक हाँ। डूबते को तिनके का सहारा वाली कंडीशन, क्योंकि वो 2 से मैंने जो सीनियर्स थे उनसे ज़्यादा मेरी कभी ज़्यादा बात नहीं हुई थी कॉलेज में। बट वहाँ पे हाँ, क्योंकि SRI सिटी से है तो वो एज अ सीनियर भी उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया आई वुड से। और वो एक थोड़े टाइम बाद एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो वो जो 4-5 लोगों की हमारी बॉन्डिंग बनी थी, दैट वाज रियली नाइस। और ऐसे राह चलते भी अगर कोई मिल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ अंकलेश्वर भरूच में ही है, हाँ, तो मिल जाएंगे। मिल जाते हैं लोग। एंड यू नो इट फील्स वेरी नाइस कि सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ना मतलब खाली टाइम पास नहीं हो रहा है कुछ, बट पीपल आर डूइंग समथिंग, Everyone is achieving something. समथिंग। अलग ही बॉन्डिंग सी फील होती है, मतलब हाँ। कोई मिले कि हाँ यार मैं भी शॉप से हो करके, तो अच्छा लगता है करके मिलके, हाँ यार आप लोग तो एक ही साथ तो थे करके। करेक्ट। और आपका तो मतलब ऐसा हुआ ना, दिया तले, मतलब बंद कमरे में अंधेरे के बीच में एक दिया ऐसा दिखा आपको। आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? सेम, मैंने भी यहाँ जॉब स्टार्ट किया तो हमारी सीनियर ही थी वहाँ पे। तो लाइक एक ऐसे रहता है, क्योंकि यहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर ज़्यादा पता नहीं था, तो वैसे एक सपोर्ट जैसा रहता है कि नहीं ऐसे ऐसे सब चलता है वैसे। तो अदरवाइज लाइक ऐसे वर्क बेसिस पे ज़्यादा मिले नहीं है, अच्छा, बट वंस इन अ वाइल कोई ऐसे मिल जाए तो लाइक बहुत अच्छा लगता है कि लाइक अगर ऐसे लाइक कॉलेज का जानते भी नहीं हो फिर भी ऐसे एक लगता है कि नहीं कुछ है ऐसे।
बॉन्डिंग जैसा मतलब कॉमन बैकग्राउंड आ जाता है ना, हाँ। चाहे हम शक्ल से कभी देखा ना हो, हाँ पर नाम सुन के नाम नहीं सुन है। के क्या श्रॉफ से, हाँ हाँ, तो अपने अपने कॉलेज। इंट्रोवर्ट हो तो आप लोग क्या उनसे बस कॉलेज की बातें चालू कर दो वापस, हाँ। प्रोफेशनल थोड़ा कॉलेज की बातें चालू हाँ करो। ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इंटर्नशिप के लिए गया था, तो मेरा जो प्लांट हेड था उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी कॉलेज से है, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक कॉलेज है करके SRICT करके जो यहाँ पे है करके। फिर उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, फिर अच्छा सा पॉज लेके बोले 2015 बैच, वही से ग्रेजुएट हुए। तो इसके साथ ही हम लोग का फर्स्ट सेक्शन तो खत्म हो गया फॉर्मल क्वेश्चंस के साथ। तो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें सेकंड सेक्शन जो रहेगा उसमें आपको एक चॉइस मिलेगी क्वेश्चन में, तो फिर भी आपको बोलना ही है, सब सारे के सारे अटेंड करने हैं। कुछ एक्स्ट्रा करते हैं ना कि रेड हो गया तो वो कैंसिल कर देना ऊपर वाला। तो और इस सेक्शन का नाम दे देते हैं सुख और दुख की बातें। तो सुख दुख की बातें चालू करते हैं। तो थोड़ा बहुत क्या, जैसे हम लोग की कॉलेज वाले हैं, हर बार कंफ्यूजन होता है ये सब काम भी आने वाला है कि नहीं कंपनी में। तो मेरे को आप दोनों से एक क्वेश्चन है करके, आपसे चालू करते करके, a+b² = a² + 2ab + b², ये अभी आपको जिंदगी में कहाँ काम आ रहा है? सिर्फ मेरे को स्कूल में काम आया था पास होने के लिए मैथ्स में, उसके बाद तो नहीं। क्योंकि मुझे मेरे एक मैथ सर ने बोला था अगर तू ये नहीं कर पाया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो सारे टीचर्स जैसे मोटिवेशन के लिए बोलते हैं वो, हाँ। पर वो सिर्फ मतलब नहीं ज्यादा मोटिवेट स्कूल में पास होने के लिए काम आता है, उसके बाद नहीं आता वो। उसके बाद कुछ काम करनी कुछ है। काम करनी है। जो बच्चे देख रहे हो ये मत देखो करके, स्किप कर देना है बट पढ़ाई करना छोड़ देंगे, बोलेंगे हमने वीडियो में देखा था। सेम क्वेश्चन आपके लिए है। पता है वो बहुत ही खतरनाक शब्द था एक, ट्रिग्नोमेट्री करके, वो ट्रायंगल को लेके पता नहीं गोल 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 करते रहता था पूरा। तो उसमें एक बहुत ही मतलब खतरनाक टर्म थे, tan थीटा = sin थीटा / cos थीटा। तो आपको तो काम आ ही रहा होगा ना अभी। हाँ, तो अभी बच्चों को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अगर बच्चों को दिखा रहा है तो हाँ लॉजिक डेवलप होता है, बाकी काम तो कुछ नहीं आता है। नहीं, ऑनेस्ट रिव्यू हाँ, तो ऑनेस्ट रिव्यू तो कोई काम नहीं आता, कुछ काम का कोई नहीं काम है, नहीं है। बस पढ़ लिया तो पढ़ वो लिया। जो एक्चुअली 9th-10th में हमने मैथ्स जो पढ़ा था ना, मेंसुरेशन और वो सब, वही सब है जो थोड़ा बहुत काम आता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं आता। तो वो कुछ काम का है नहीं। फील्ड पे निकलने के बाद मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको से मीटर और मीटर से फुट नहीं कन्वर्ट करना आता। तो या मतलब साइन थीटा कॉस थीटा बहुत दूर की बात है, पहले ये कन्वर्जन ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें हम कवर अप के लिए बोल सकते हैं हमारी फील्ड में काम नहीं आता, किसी और को आता होगा, हमको नहीं आया। हमको तो नहीं आया। हम लोग को मतलब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा मतलब क्या हो रहा है नहीं। और आप में तो शायद ऐसा था ना उस टाइम में कि मैथ्स 4th तक पढ़ाई की थी आपने। कैसे वो 4th मैथ्स ही सबसे अच्छा था। हाँ, ऑनेस्टली सबसे अच्छा वही था। मेरा तो कैसे निकल गया ना, मतलब बस हम लोग का अच्छा था कि सिर्फ मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पे खत्म कर दिया। अच्छा 3 भी नहीं था। 3 भी नहीं था, बस 1 और 2 में खत्म कर दिया, बस भगवान की कृपा। थर्ड बस कोविड वाले होंगे ना। नहीं कोविड वाला तो हम लोग का सिलेबस में इतना था, और कोविड की मेहरबानी है कि मैथ्स 2 का एग्जाम ही नहीं हुआ, वो तो मास प्रमोशन में था। नसीब वाले हो तुम लोग। नसीब वाले। मतलब भगवान ने बहुत फुर्सत से हमारी तकदीर लिखी लिखी थी। हाँ, वीकेंड्स पे लिखी थी। और एक और क्वेश्चन, जैसे अपने यूनिवर्सिटी में हमेशा रेवा फेस्ट होता है, एनुअल फेस्ट होता है, और इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके टेक्नोवेशन होता है, तो उसकी तैयारी को लेके बच्चे ऑलरेडी 1-1 महीने से लगे रहते हैं करके। तो आपने ये 2 शब्द रेवा फेस्ट और टेक्नोवेशन, उसका कितना फायदा उठाया? तुम एक शब्द भूल रहे हो, रॉट्रैक क्लब। हाँ, रोटरेक क्लब। तो टेक्नोवेशन, रेवा फेस्ट, रॉट्रैक क्लब, मैं बोलूँगा बहाना लेके बाहर नहीं निकले, बट इन तीनों में कॉलेज लाइफ कैसे निकल गई इन तीनों में वो पता नहीं चला, टू बी वेरी फ्रैंक। और ठीक है, अभी फनी उसमें बोल सकते हैं कि हाँ बंक मारा, ये किया वो किया, बट एक्चुअल जो चीज़ अभी लाइफ में काम लग रही है इज़ दी मैनेजमेंट स्किल। और वो मैनेजमेंट स्किल आई ये चीज़ें मैनेज करके है, व्हेन यू हैव टू मैनेज दी होल इवेंट। ठीक है, उसमें जितने लोग पार्ट ले रहे हैं उनको मैनेज करना है, कौन सा डांस कहाँ होने वाला है, उसका गाना कहाँ है, फ्लो बनाना, वो पूरा फ्लो बनाना, फिर उसके बाद ये सब हो गया, उसके बाद एंकरिंग का पूरा स्क्रिप्ट लिखना। तो वो सब करने में मतलब देयर इज अ टाइम जो लगता है, और उस टाइम के बदले यार थोड़ा बहुत तो चलता मजा Compensate कंपनसेट करना पड़ता है। हार्ड वर्क शुड पे ऑफ। हाँ, तो वो और उसके साथ मतलब बहुत मैनेजमेंट का मतलब बहुत सीखने को मिला। उसमें ये भी होता है ना कि पार्ट 2 ने लिए होते हैं, निकलते 10 हाँ, हम हैं। मॉरल सपोर्ट Moral मिल जाता है, support तुम आगे वाली बढ़ो, हम correct, तुम्हारे साथ हम हैं। तुम्हारे साथ हैं।
तो अभी टेक्नोवेशन में यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस को बुलाते हैं। हाँ बुलाते हैं हम। तो उस टाइम पे हम लोगों ने जब शुरू किया था तो पहले सिर्फ अपना कॉलेज था, फिर धीरे धीरे हमारे टाइम में हमने दूसरे कॉलेजेस बुलाने शुरू किए। तो दूसरे कॉलेजेस के बच्चे जब आते हैं ना, उनका मैनेजमेंट करना, क्योंकि वो एक गेस्ट है, हाँ, गेस्ट है। हाँ उनका मैनेजमेंट करना, वो सब करना, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। हॉस्पिटैलिटी हाँ, वाला वगैरह का। तो वो मतलब एक अच्छा लर्निंग मिलता है इसमें। काफी ऐसी चीजें होती है जो अपने दिमाग में भी नहीं रहती, वो प्रोस्पेक्ट्स पे भी काम करना पड़ता है मैनेजमेंट के टाइम। एंड दी प्लस पॉइंट इज कि यहाँ पे फैकल्टी और जो मैनेजमेंट है ना, वो हमारे ऊपर छोड़ देती है, हाँ। करो आप, काफी इंडिपेंडेंस दी हाँ, जाती है, तुम ये करो वो करो, आप आइडियाज ये बजट है, इसमें आपको करो, मैनेज हाँ। करना है, कैसे भी करो। तो वो नेगोशिएशन कैसे करना है, क्या करना है, और मैनेजमेंट क्या करना है, वो एक अच्छा लर्निंग मिलता लर्निंग है। रहता है। ये कंप्लीट पैकेज है फन प्लस लर्निंग का। करेक्ट। हाँ, अब मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ना उसमें, अब आपने तो ज्यादा रेवा देखे, आपने भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब स्टार्टिंग में जब काम रहता है ना, थोड़ा कंटा लगा कितना काम करना है, फिर थोड़े टाइम में जब यूज टू हो जाते हैं और जब फाइनली वो खत्म होता है ना, तो मतलब Satisfaction। बहुत नहीं, बहुत। सेटिस्फेक्शन पहले मिलता है जब खत्म हुआ। सेटिस्फेक्शन होना फेस्ट के टाइम पे चालू हो जाता है कि बहुत अच्छे से हो रहा है करके। हाँ। और उसके बाद फेस्ट खत्म होने के बाद जब वापस 9 to 5 रेगुलर लेक्चर्स में जाना पड़ता है ना, वो तो मतलब लिटरली आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब ये क्यों हुआ करके। 9 to 5 लेक्चर्स तो ठीक है, मतलब उससे रेवा फेस्ट अगर अगले हफ्ते है, तो ये हफ्ते से तो रात को 8-8, 9-9 हाँ, बजे यहाँ कॉलेज पे नहीं रहते होंगे। थे, हाँ। ठीक है, और तुम्हारा तो हॉस्टल है, हमारे हॉस्टल टाइम तो हॉस्टल भी वो नहीं भी था, नहीं तो था। भी हम लोग 8 बजे तक तो कॉलेज में रुकते थे। और तो- वापस भरूच जाके हाँ। 1 घंटा ड्राइव करके। तो मतलब पर वो एफर्ट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत आती नहीं थी। होती। पर उसके बाद जो खाली 5 बजे तक भी कॉलेज में रुकना है, उसमें दिक्कत आती थी। हाँ, मतलब जैसे आप बोले कि इवेंट्स वगैरह रहते हैं, उसके अंदर एफर्ट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोले कि आज एक्स्ट्रा लेक्चर है, 2 घंटे और रुक जाना है, तो आप इनके सपोर्ट में रहोगे कि मतलब पहले इधर ना कभी? नहीं, मतलब उसमें क्या है कि एफर्ट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लेक्चर में बैठना एफर्टलेस चीज होगी ना, तो हाँ। हमें तो एफर्ट डालना। वहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस में मिलता है। और कभी कभार ना पहले तो एक्सपर्ट लेक्चर अपने लेक्चर्स के टाइम पे रखते हाँ, थे, हाँ। तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ। थोड़ा ब्रेक मिल गया, ये हाँ। लेक्चर थोड़ा मिस हो गया, तो एक्स्ट्रा ज्यादातर ऐसे रखे नहीं है। अब मेरे मतलब हमारे टाइम पे नहीं थे। 4:20 के बाद कोई लेक्चर नहीं होता था। 4:20 अच्छा, अभी टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया, फायदा हो गया। 5, हाँ, हमारे टाइम पे हो गया। और था, आपने उसके अच्छा ऐड बाद- कराया एक्सपर्ट लेक्चर का, जो भी अपने हाँ। कॉलेज का एक खास अच्छा इनिशिएटिव है, जो और नॉर्मली कहीं और होता नहीं नहीं, है नहीं। कि कोई और फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हो। और अब तो फायर एंड सेफ्टी के रिलेटेड भी आ रहे हैं, हाँ। तो काफी सारी चीजें हमको जानने मिली ये एक्सपर्ट लेक्चर्स के थ्रू। एक्चुअली एक्सपर्ट लेक्चर में मतलब वही है कि इंडस्ट्रियल नॉलेज अच्छी, इंडस्ट्रियल नॉलेज अच्छी मिलती है। कनेक्ट अच्छा मिलता है। और यही एज भी है हम लोग के ऐसा यूपीएल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, हाँ। कि जब हम लोग जाते हैं वर्क प्लेस पे, और हम लोग के जस्ट सीनियर्स ने भी बताया करके कि हम लोग को ऑलरेडी कंपनी के एसओपीज क्या है, पता कैसे वहाँ पे प्रोसीजर है, उसके बारे में पता रहते, तो हम लोग को थोड़ा, जैसे आपने ट्रांजिशन फेज की बात की थी, कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती करके, प्लस पॉइंट है, एज रहते हैं हम लोग को ग्रेजुएट का होना यहाँ से। इवन जानने को भी मिलता है, लाइक कंपनी वाले कंपनी आते हैं वाले तो आते एक हैं। इंट्रोडक्शन भी होता है कि मतलब ये है ऐसे करके, तो एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है उस तरह से। ये हम लोग वापस इनफॉर्मल सेक्शन थोड़ा हाँ। फॉर्मल हो गया, थोड़ा वापस इनफॉर्मल हो जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन एक और था कि बंक तो मारे ही अभी, बताइए करके, तो कभी ऐसा हुआ कि बंक मारा और पकड़े गए करके? और देखो, चोरी ऐसी करो कि पकड़े ना जाओ। वो क्या होता है ना कि हम नहीं पकड़े जाते, लेकिन कुछ होते हैं ना हाँ, जो उसे जो पकड़े पकड़े जाए। जाते हैं, उनकी इनको नहीं वजह से आता। फिर हम हमारे सारे को questions पूरे- आते हैं। हाँ, कि नहीं थे ऐसे लेकिन करके। मतलब वही ना, चोरी ऐसी करो कि पकड़े मत जाओ। तो क्या है, हमेशा अगर कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता था कि पकड़े जाने वाले हैं या ऐसा कुछ है, तो मतलब सामने से जाके कुछ ना कुछ हाँ, पहले हाँ। बोल ही दो कि हाँ भाई किया था, सॉरी, उसमें यूनिटी आ जाती है, हाँ। सब साथ में जाके ठीक है। कन्फेस कर दो कि कन्फेस हाँ कर भाई दो कि हाँ किया कर है, लिया, नहीं होगा दोबारा वैसे। हम लोग में तो बंक होने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम हुई है, क्यों? पढ़ेंगे करके काफी फ्रंट बेंचेस बढ़ गए हम लोग का। अच्छा, हम हम लोग भी के थे, वैसे- लेकिन हम जाते थे बाहर। नहीं पढ़ना चाहिए actually। नहीं, बस ये वैसे। पढ़ना चाहिए, पढ़ो। तमिल सर को तो आप जानते ही हो अच्छे से, आपके डिपार्टमेंट में से थे, और आपका और उनका अच्छा बॉन्डिंग भी था। तो जब हमने उनको बताया करके कि हम आपको बुला रहे एलुमिनी चैप्टर मीट में, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था। पहले हमने उनका एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ उनका वीडियो मैसेज। अब देखिए एक बार ये मैसेज आपके लिए था। Hi Vasu, this is Samir sir here. I have a message for you. I can say that you are an all-rounder performer, and the progress we have seen, or the progress we have shown to the world during your journey from academics to professional life, it was tremendously good. And on this occasion, I remember one of the
incident which was happened during the Riva Fest, that you have talked to Panjwani sir and you have asked for helicopter ride if you completed the commitment. So it was a very shocking for all of us. Rather, it was entertaining. So thank you very much. सीरियसली बात की थी. तो सांड्रा मैडम और पंजवानी सर साथ में बैठे थे. बोला 10 पॉइंटर लाऊंगा तो हेलीकॉप्टर में घुमाना. अच्छा है. तो फिर आपको मौका मिला कि नहीं हेलीकॉप्टर में घूमने का? नहीं 10 पॉइंटर ही नहीं आ पाए ना. मेरे को पता होता तो मैं भी एक बार सजेस्ट तो करती. तो तुम सेकंड ईयर में होंगे जब मैं नहीं किया था. मैं थर्ड ईयर में था जब मैं नहीं किया था. एक्चुअली वो एक रूल बना देना चाहिए. 10 पॉइंटर गोल्ड मेडल मत दो, एक बार हेलीकॉप्टर में राइड. ये ज्यादा लोग ज्यादा आते हैं. मुंबई ले जाओ, मुंबई से वापस किया. आपका 1-to-1 मीटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो 1-to-1 अपने कॉलेज का एक कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, जो पर्सनल अटेंशन और स्टूडेंट की तरफ दिया जाता है करके, तो आपका कैसा था 1-to-1 का? नहीं अच्छा था. लाइक इन अ वे इंस्पिरेशन जैसा भी मिलता है कि लाइक हम ऐसे बोलते हैं कि हम इतना लाएंगे तो सर नहीं इतना तो तुम्हारा कैपेबिलिटी है, मुझे पता है. हाँ, तो इतना लाओ हर चीज़ के लिए, इवन सब्जेक्ट्स के लिए, अटेंडेंस के लिए, हर चीज़ के लिए. तो उससे मतलब होते थे ऐसे इंस्पायर कि नहीं हम लाएंगे. तो आपने जो टारगेट दिया तो आपने कितने बार अचीव किया? हर बार? मेरे को एक्चुअली पूछते नहीं थे, खुद ऐसे 10 हर बार लिख देते थे. तो जितनी बार आए उतना बार हुआ, बाकी बार नहीं हुआ है. तो हाँ वैसे था. मतलब 10 आए. हाँ 2-3 बार. 2-3 बार. ठीक है. नहीं मतलब मेरा तो क्या होता था कि आते थे कुछ 8-8.5 के बीच में. अच्छा. तो वो हमेशा 9 के ऊपर का टारगेट देते थे. वहाँ पे हम लेके भी आ जाते थे, पर पता होता था कि ये 8.5 से 9 की जर्नी है ना सबसे डिफिकल्ट है. वो मतलब वो एक्चुअल में सीरियसली पढ़ना पड़ता है 8.5 से 9 पहुँचने में. नोट्स देख के काम नहीं चलना चाहिए. तो वो खाली डायग्राम देख लिया, वहाँ पे बना दिया अपने हिसाब से लिख दिया, तो उससे वो नहीं होता. तो पता होता था कि शायद नहीं हो पाएगा. बट हाँ एक वो रहता है ना, एक फिर भी बैक ऑफ द माइंड में एक रहता है कि यार हमने किसी बड़े आदमी को हम कमिटमेंट दे के आए हैं कि हाँ 9-9.5 लाएंगे. तो एक प्रेशर रहता है. और वही एक प्रेशर है जो वो प्रेशर ड्राइव करता है थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ने के लिए. टाइम से असाइनमेंट सबमिट हो, इंटरनल्स ठीक ठाक जाए, वो सब के लिए. तो वो वही एक ड्राइविंग फोर्स रहता है. एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं. एटलीस्ट दिमाग में तो रहता है कि इस बार का टारगेट 9.2. वरना अगर वो कोई पूछता नहीं तो टारगेट वही हरी पट्टी रहता है. और ऐसा अच्छा भी लगता है ना कि एक इंसान जो ऑलरेडी काफी अच्छे पोजीशन पे है, वो बेसिक लेवल पे आके हमसे इंटरेक्शन करके हमारी पढ़ाई के बारे में जानता है. इतना टाइम निकाल के आ रहा है एक्चुअली. ईच एंड एवरी स्टूडेंट. हाँ एक और उनके ना बात करने में और वो जो एक बैठ के बोलते हैं ना उसमें एक अलग मोटिवेशन एक अलग मोटिवेशन रहता है उनके. He convinces you कि नहीं you can do this. इतना तो कर लोगे. अरे एक बार कमिटमेंट दे दिया तो रहता है कि यार बोल दिया अब तो करना पड़ेगा. अगले 1-to-1 में मेरे को बोलना पड़ेगा कि मैंने कितना क्यों नहीं आया. और मैं तो हर बार यही रीजन देता हूँ कि क्यों नहीं आया. तो अब हम लोग सेफ खेलने लगे. मतलब पता है कि 8 तो आएगा तो मुझे 7.5 आएगा सर. फिर नेगोशिएशन करके 8.5. तो हमारे टाइम पे ना वो सेफ खेलने का ऑप्शन नहीं होता था. अच्छा ऑप्शन नहीं होता था. इतना तो तुम कर ही लोगे. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अभी तुम्हारे 8 आए, 8.5 तो तुम ले आओगे. पॉइंट है 9 कब लाओगे. तो 9 का टारगेट होता था. इवन फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें 12th के मार्क्स देख के जज किया था. नहीं इतना आया था 12th में तो इतना तो आ ही जाएगा तुम्हारा इसमें. तो वहाँ से ऐसे ही था. 1-to-1 का सिलसिला अभी भी इसी तरह से चल ही रहा है. चलता रहे. अच्छा ही है. तो 1-to-1 को लेके है ना, इस बार जो रेवा फेस्ट हुआ था उसमें एक एंकर था, उसने बहुत अच्छी शायरी लिखी थी राहत इंदौरी की स्टाइल में. तो आपको सुनाता हूँ मैं शायरी, आपको भी अच्छी लगेगी. अच्छे से आराम से बैठ के सुनते हैं. जरूर. शायरी कुछ ऐसे थे. इंजीनियरिंग रुलाती है मगर रोने का नहीं. वाह. इंजीनियरिंग रुलाती है मगर घबराने का नहीं. तू पढ़ मेरे यार बस बैकलॉग लाने का नहीं. तू पढ़ मेरे यार बस बैकलॉग लाने का नहीं. अब इसमें इतना अच्छा जिक्र किया उन्होंने 1-to-1 का. लक्ष्य रख 9 SPI लाने का. लक्ष्य रख 9 SPI लाने का. आखिर फेलिसिटेशन में भी तो जाना है मेरे यार. एक कोई बहुत ही क्रिएटिव था, इसने बना के लिखी थी. बढ़िया. नाइस. तो इसके साथ आप लोग हमारा सेकंड सेक्शन एंड करते हैं. अब हमारे पास लास्ट सेक्शन रहेगा और लास्ट सेक्शन है थोड़ा गेम्स का, जिसमें एक अलग गेम हम लोग ने सोचा है आपके लिए. तो ये जो गेम है उसके लिए आप दोनों के बाजू में कार्ड्स रखे हुए हैं.
कार्ड्स के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको वर्ड्स प्रॉम्प्ट करने हैं और दी को गेस करना है कि कौन से वर्ड्स हैं. So let's begin. Music please. So let's start. Coffee. Coffee. First one. First one. काफी इजी था लगता है. नेक्स्ट वर्ड. Mechanical. Vasu. Mechanical. Piano. हाँ. इशारा नहीं करना, आपको बस बोलना है. Pizza. Mac. Bang. Mechanical. बोलना ही. Mechanical. आपको सिर्फ बोलना ही है. P से शुरू हो रहा है. M. Pram. M. Mechanical. कहाँ? नीचे. कहाँ जाना है आपको? Mechanical. हाँ? मेरा ब्रांच कौन सा है? Master. Mechanical. हाँ, मेरा ब्रांच Mechanical. हाँ. So finally guess कर लिया. हाँ. ये वाला ओके. मेरा. यू. तू. यू. J. Environment. तू को You. यू. इशारा नहीं करना. ओके. Light. ट्यूब. Tube light. यू. Tube. यू. Light. यू. You. ट्यूब. Light. ट्यूब लाइट. Tube light. यू. ट्यूब. YouTube. यूट्यूब. अच्छा YouTube. यूट्यूब. तो फाइनली जैसलदी ने मेहनत के बाद सारे के सारे वर्ड्स गेस कर ही लिए. सो हाँ. हम लोग ईयरफोन स्वैप करते हैं. Good one. वासु अब आपकी बारी. आपको हेडफोन्स पहनना है. जैसलदी आपके बाजू में क्यू कार्ड होगा, उसके अंदर आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं. So let's मेरा वो चालू नहीं है अभी. सी मॉडेस्ट. स्टार्ट. इशारा नहीं करना. Sorry. T. ई. मेरा क्या था पीने का? कॉफी. हाँ. टी. इजी गेस. हाँ. सेमिनार. सायोनारा. ये क्या है? सेमिनार. Environment. हॉल. हॉल. क्या है नाम? Seminar hall. हाँ. ओके. बुक्स. ऐसा होता है जिनसे इनका लेना देना नहीं है. बुक्स. हाँ. That's it. Done. So we year end our first game. So second game की तरफ बढ़ते हैं. Second game थोड़ा रैपिड फायर जैसा है. इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा आप दोनों से, आपको फटाफट इसका आंसर करना है. So we start with you, Vasu. You are a morning person or night person? नाइट. आलिया, दीपिका. आलिया. चाइनीज और पंजाबी? चाइनीज. रोडीज या स्प्लिट्स विला? कुछ भी नहीं. बेस्ट प्लेसेस टू बंक इन कॉलेज? कॉलेज के बाहर. कॉलेज के बाद. ओके. So we move on to the Jaisal. You like sea or mountain? Mountain. Kaushal or Vijay Devarkonda? Vijay Dev. 9 to 5 in college or at workplace? Workplace. स्प्लिट्स विला या लव स्क्रीन? मैंने दोनों नहीं देखा. Sorry. Okay. कैंटीन की फेवरेट चीज? I think Chinese is really good and dosa. डोसा डोसा is इज नाइस. या डोसा में भी अच्छा है. हाँ. अभी मिलेगा ना? हाँ नहीं. अभी आपके लिए कॉफी मंगाई थी. वो भी ठंडी है. यश. गरम थी, आधे तो ठंडी हो गई. बहुत दूर से ये लग रहा है. सो हम लोग हमारा द थर्ड सेक्शन यानी आपका एग्जाम खत्म होता है यहाँ पे. इन शॉर्ट द वाई इज ओवर. तो पास कौन हुआ? Scores. पास रिजल्ट आने में टाइम लगता है. हरी पट्टी आई है कि नहीं? बस वो जानना वो है. देख के बंद कर देंगे. हरी पट्टी आ गई तो ठीक है, चलेगा. पहले रीअसेसमेंट में डाल दें. पैसा लगता है उसका, वो हम नहीं दे सकते हो. चलिए. शॉर्ट में कहता हूँ कि हम लोग ये हमारा आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है आप सबको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे और एपिसोड्स आते रहेंगे.